Hello everyone, a very good afternoon to all of you, and I am Vivek Mishra, your geology tutor of our Maths Odia platform. And today I am here to discuss about the last monthly geology test you have appeared, and so let's start with it. So last 11th class रो ये exam ହେଇଥିଲା biology रे. So one by one ଆମେ ସବୁ ଯାକ discuss କରିବା. So let's start with the 1 mark questions. So the first question, which of the following is the functional unit of kidney? Kidney रो functional unit टा कौन? Structural, functional उभय. But the difference is structural unit और functional unit भितर कौन difference रहुचे? जेमती कि हमें cell कथा कहि परिबा. Cell हमरो structural और functional unit of our body. So life भी कहि परिबा. So structural और functional. Structural structure wise, functional function wise. So जदि तमरो गोटे organ अछि बा जे कोनोसी गोटे part हो तार हमें structure विषय रे कथा होचे तार building blocks किए तार structure और building blocks किए तो आमे सेही particular को structural unit कहि परिबा. Functional unit जदि गोटे particular organ विषय रे हमें कथा कहूचे तार whole से organ रो function गोटे जदि particular माने यूनिट उपरे डिपेंड करे ताको हमें फंक्शनल यूनिट कहिबा. फॉर एग्जांपल जेमते सेल हमरो शरीर को गठन भी करे सो स्ट्रक्चरल यूनिट आउ आम शरीर रो समस्त फंक्शन मध्ये हमरो सेल ही करे सो मॉलिक्यूलर लेवल रे जते सब फंक्शंस हेई थाए. So that's why cell is both structural and functional unit of our body or our life. सेमती जदि functional unit of kidney पचाची the answer will be nephron because तमे जानिचो millions of nephrons हमर रहिचे जोटा कि फिल्ट्रेशन करे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करे करिकी तुमरो फिल्ट्रेट जोटा कि यूरिन हिसाब रे फॉर्मेशन हेकी यूरेटर बाट देकी तुमरो यूरिनरी ब्लैडर को आसी थाए. So the kidney is made up of whole kind of things, but nephron is the main part of the kidney. There are million of nephrons which function as the functional unit of kidney. ठीक अछि. Now the next question, which blood vessel, the right answer will be here, nephron. And the next question, which blood vessel carries blood away from the glomerulus? केउ blood vessel टा तुमरा glomerulus रु जो blood अछि ताको आवे माने दूर को नहीं जाए गोटे इनसाइड आसे आ गोटे आउटसाइड को जाए. सो जोटा भीतर को पसे ताको एफरेंट आर्टेरियल कहंती जोटा बाहर की चाली जाए ताको इफरेंट आर्टेरियल कहंती. You can see the diagram also. एटी तमे डायग्राम भी देखि परिबो. एफरेंट आर्टेरियल तमरो प्रवेश करूची ग्लोमेरुलस भितरे बाउमेन्स कैप्सूल भितरे पुनी इफरेंट आर्टेरियल तमरो बाहर को चली आछी. सो आंसर विल बी व्हाट? इफरेंट आर्टेरियल. ओके आवे जदी कहि जावे माने कोन दूर को नहीं जाउची. देन ultrafiltration occurs in where? Loop of Henle, Bowman's capsule, distal convoluted tubule or collecting duct. आंसर देखिबा सही हमर बुक रे ही अछि. सो आमे जानिचे प्रथम फिल्ट्रेशन तमर जोटा होची सेटा स्टार्ट होची ग्लोमेरुलस रे. सो ग्लोमेरुलस रे ही तुमरो नॉर्मली देखि परिबो glomerular filtration हेई थाए. So blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of plasma except the proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. So Bowman's capsule lumen भितर को प्रोटीन को छाड़ी की एवं सबु गुडा को जिंस फिल्टर आउट हेता है एवं या को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोली मध्य कुहा जाय. Therefore it is considered as process of ultra filtration. So the glomerular filtration is known as ultra filtration. So the ultra filtration occurs where? At the Bowman's capsule or at the glomerulus. So answer will be what? Bowman's capsule. Now the fourth question, that is counter current mechanism takes place between counter current mechanism. Remember counter current mechanism हम पढ़िथिले जेतेबेले PCT रु ओलेला, then descending limb, loop of Henle, ascending limb, DCT एई भितरे लूप ऑफ हेनले एवं भाषा रेक्टा जोटी तुमरो आसिला कि एफरेंट आर्टेरियल आसीची जोटा माने गिव अवे करिची तुमरो ब्लड वेसल्स को सी आसी कि तुमरो भाषा रेक्टा फॉर्म करिची एवं देन तुमरो वेन हिसाब रे बाहर को जाईची. सो द आंसर विल बी
कौन हेनलेस लूप एंड भासारेक्टा ऑप्शन बी आमे जदि डायग्राम रे भी देखि परिबा हियर नेफ्रॉन एंड भासारेक्टा नेफ्रॉन रो को पार्ट लूप ऑफ हेनले हैला लूप ऑफ हेनले तमरो लूप ऑफ हेनले आ भासारेक्टा भितरे तमरो कौन ही थाए ए जिनसटा सो भासारेक्टा फॉर्म हेची एवं लूप ऑफ हेनले ए भितरे तुमरो काउंटर करेंट मेकानिज्म हे थाए बुझी परछो सो जदि हमें देखिबा बुक रे भी कोठी लिखा हेची हाँ so special arrangement of loop of Henle or Henle's loop and vasorecta is called the counter current mechanism. Got it? Understood? Moving to next, major nitrogenous waste product in humans is human manakoti major nitrogenous product तमरा कौन बाहरे excretory product so answer will be urea जदि major कथा पचारिची हला major कथा जेहेतु पचारिची major हमर urea ही excretory product हिसाब रे बाहरे बुझा पड़ला सो या परे जो तुमरो क्वेश्चंस अछि 2 मार्क क्वेश्चंस एवं 2.5 मार्क क्वेश्चंस सो तुमरो लॉन्ग क्वेश्चंस मु पके नथिली सो डायग्राम्स पडिथिला 2 मार्क या 2.5 मार्क क्वेश्चंस पडिथिला मु यार आंसर सहित गोटे पीडीएफ बने देछि हमें सेही जिंसटा डिस्कस करि दबा हैला सो कमिंग टू द क्वेश्चन डिफाइन एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन बा रेचन क्रिया कोन सो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच harmful metabolic waste products and excess substances are eliminated from the body to maintain homeostasis and prevent toxic buildup. Biological process गोटे एवं या द्वारा कौन हुए हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तुम शरीर रे अहरह मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चली थाए वेस्ट प्रोडक्ट जति कि से मेटाबॉलिक प्रोसेस रे उत्पन्न हुए जो गुडाक हार्मफुल हम शरीर पई जेमति कि यूरिया एंड एक्सेस सब्सटेंसेस आर एलिमिनेट एक्सेस सब्सटेंसेस इन द सेंस आमे बहुत सारा पानी पी देचे यूरिया एलिमिनेट हबा पई हमको पानी ही आवश्यक सो जते बडे एक्सेस सब्सटेंस कथा कहला सेठी हमें शरीर रे जहा किछि भी एक्सेस सब्सटेंस अछि से पानी हो से इलेक्ट्रोलाइट्स हो से ग्लूकोज हो से जहा भी हो से सब एक्सेस सब्सटेंसेस ए यूरिया बा हार्मफुल प्रोडक्ट सहित बॉडी रु निष्कासित हो जाए कौन पई ना समन्वय रक्षा करिबा पई होमियोस्टेसिस रक्षा करिबा पई हैला शरीर रे कोनोसी प्रकार टॉक्सिक बिल्डअप न हबा पई कोनोसी प्रकार हार्मफुल वेस्टेज प्रोडक्ट शरीर रे बढ़ी न जाओ टॉक्सिक मटेरियल बढ़ी न जाओ याकू हमरो एक्सक्रीशन प्रोसेस कहा जाए देन डिफरेंशिएट बिटवीन सो फर्स्ट क्वेश्चन हमर हे गला देन सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन एफरेंट आर्टेरियल एंड इफरेंट आर्टेरियल तो आमे जदि डायग्राम भी देखिबा एफरेंट आर्टेरियल और इफरेंट आर्टेरियल मु बाउमेन्स कैप्सूल रो डायग्राम एठी देखौची बस सो एफरेंट आर्टेरियल जदि एफरेंट आर्टेरियल कथा तुमे देखिबो एफरेंट आर्टेरियल रो डायमीटर टिके बड़ इन कंपैरिजन टू इफरेंट आर्टेरियल हैला प्लस एफरेंट आर्टेरियल ब्लड को तमरो टुवर्ड्स द बाउमेन्स कैप्सूल और टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस नहीं थाए whereas efferent arteriole away from the glomerulus or away from the Bowman's capsule नहीं थाए हैला ठीक अछि बुझा पड़ला the efferent arteriole brings blood into the glomerulus and has a wider diameter सेमिति efferent arteriole कौन करे away from the glomerulus also a narrower diameter जेहेतु हमर स्पेस कथा हमें देखिबा एठी स्पेस तुमरो अधिक हला तो प्रेशर निहाती रूपे कम हबो ब्लड प्रेशर निहाती कम हबो सेमती एठी प्रेशर टा कोन हबो जेहेतु डायमीटर तमरो कम अछि प्रेशर टा इंक्रीज हबो कारण हमें जानि छे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रेशर स्पेस जोटे अधिका थिबो प्रेशर कमी जिवो स्पेस जोटे कम थिबो प्रेशर बढ़ी जिवो बुझा पड़ला so second question done third question state the role of podocytes in urine formation podocytes कोन podocytes होची गोटे specialized cells जो गुडा को कि बाउमेन्स कैप्सूल रो लाइनिंग रे थांदी बाउमेन्स कैप्सूल तमे जानि छ तार लाइनिंग माने कोन तार आउटर एवं इनर साइड रे स्पेशलाइज्ड सेल्स गुडा को सेल गुडा को जो पोडो माने पाद साइड्स माने सेल्स पोडो माने फुट साइड्स माने सेल्स सो फुट लाइक एक्सटेंशन पाद भलिया गोटे गोटे एक्सटेंशन हेतिबो जोटा कि स्लिट स्लिट माने कोन चीरी जाइतिबो चीरा सृष्टि हेतिबो
हैला जा बाट देकी केवल पानी वाटर एवं छोट छोट सॉल्यूट पार्टिकल्स ही एंटर करि परिबे लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एगुडा ब्लड रे रही जिवे एल्बुमिन वगैरह जहाँ भी अच्छी सो ये एटा तुमरो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस रे सहाय्य करि थाए बुझी परलो सो podocytes are specialized cells lining the Bowman's capsule. Their hood-like extension form filtration slits, ensuring only water and small solutes enter the filtrate, while large molecules and protein remains in the blood. Water और small solute particles सेटा को ही से filter out करी की Bowman capsule रू तुम्हारा PCD भितर को enter कराए through the process of ultra filtration. Understood? Now, next question, draw a label diagram of renal corpuscles. Renal corpuscle रो गोटे label diagram करा. So, तार answer तमे कौन तमे बनेबा कथा ना hand drawn और textbook diagram तमे NCERT जदि prefer करूचो बा जेकोनोसी book prefer करूचो तार तमे Bowman's capsule तमे ताकू draw करिवो. So, renal capsule पचारिची एटी तमे देखि परिबो. So most of the cases रे पिला माने confuse भी हो जाती जे renal capsule कौन corpuscles कौन so renal corpuscle होची Malpighian body और तमरो Bowman's capsule glomerulus रो diagram कथा से पचारी ची तुम्हें जदि NCERT पढ़ुचे तुम्हें देखि परिबो why I am teaching from the NCERT because most of the questions or I can say almost all questions comes from the NCERT biology book in the NEET exam or most of the entrance exam. So I'll request कि तुम माने NCERT book भलो से पढ़ो ताको सेटा जेहेतु माने तमरो फाउंडेशन ब्लॉक सेटा फाउंडेशन पाई तम जेतिकी ज्ञान आवश्यक सब गुडा को NCERT बही रे बहुत सुंदर भाबरे लेखा हैछि सो प्लीज फॉलो NCERT बुक्स ता सहित तुमर सीएचएसए ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢଉଛୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ क्वेश्चंस ବି ଦେବି आंसर्स ବି ଦେଉଛି ऑलरेडी नोट्स आई हैव प्रोवाइडेड सो किंतु तुमर जदि डायग्राम्स कथा मु कहबे तुम एनसीईआरटी बही प्रेफर करो जदि ब्यूरोस भी प्रेफर करूछ देयर इज नो प्रॉब्लम तुम ब्यूरो बही भी प्रेफर करि परिबो बट एटी मु जेतेबेले रिनर कॉर्पस्कल्स कथा पचारिछि तमे एई जो डायग्राम अछि याकू ही ड्रा करिबो जस्ट खाली तुमको बाउमेन्स कैप्सूल ड्रा करिवार अछि विथ योर ग्लोमेरुलस इफरेंट आर्टेरियल ब्लड फ्लो रो माने तमर डायरेक्शन देखिबा कथा देन पीसीटी बस एटा ही ड्रा करिवार थिला सो दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन then write to differences between cortical and juxtamedullary nephron एटा तुमको क्लास रे ऑलरेडी पढ़ाई ची cortical nephron कौन juxtamedullary nephron कौन so cortical cortex so जो nephron गुडकर most of the part cortex रे अछि से गुडक cortical nephron एवं जो गुडकर most of the part तुमर medullary अछि सेटा होची juxtamedullary nephron so most of the part हमें कहि परिबानी आफ्टर पीसीटी परे तुमरो मोस्ट ऑफ द पार्ट जति कि रहिला अप टू डीसीटी सेटा तुमरो मेडुला रे रहिबो हैला लूप ऑफ हेनले जोटा कि तुमरो इनर मेडुला अंश रे रहिबो सेटा हे गला तुमरो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आमे जदी डायग्राम देखिबा यू कैन सी दिस डायग्राम हियर दैट कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भीतर से डिफरेंस देखिछि देखि पारुथबो जे कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैला तुमरो जो नेफ्रॉन रे जोथरे लूप ऑफ हेनले एकदम छोट होता है एवं भाषा रेक्टा तुम प्रेजेंट ही न थाए हैला भाषा रेक्टा प्रेजेंट थिले बहुत छोट परिमाण अथवा प्रेजेंट नथिबो एवं लूप ऑफ हेनले बहुत छोट हेतिबो तुम मेडुला अपर मेडुला रीजन रे थिबो whereas juxtamedullary nephron कथा जदि हमें देखिबा तार लूप ऑफ हेनले पूरा इनवर्डली जाइथिबो अप टू इनर मेडुला पर्यंत हैला तार लूप ऑफ हेनले बहुत अधिक लंबा हे थाए तेणु एटी भाषारेक्टा प्रेजेंट थाए और भाषारेक्टा प्रेजेंट थिबा हेतु तुमरो भाषारेक्टा और लूप ऑफ हेनले भितरे तुमरो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परे परे जो प्रोसेसटा हुए कोन तुमरो काउंटर करंट मेकानिज्म सेटा बहुत भलो से हे पारे so this is the main reason or main difference between the cortical nephron and juxtamedullary nephron understood what is the significance of osmoregulation in humans humans manankoti osmoregulation ro kona significance rahichi already discussed in the class osmoregulation kona ना osmoregulation होची तुमर जो इलेक्ट्रोलाइट रो बैलेंस अछि शरीर भितरे
वाटर सहित सेटा जेमिति हेले मेंटेन हेकि रहइबो ऑस्मोसिस रो ऑस्मो रेगुलेशन देन प्रॉपर सेल फंक्शनिंग तमर हुए केमती फॉर होमोस्टेसिस प्रोसेस ऑस्मो रेगुलेशन हेले ही इलेक्ट्रोलाइट्स रो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गोटे सृष्टि हुए जो द्वारा तुमरो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हे पारे बा ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल भी हे पारे हैला सो ऑस्मो रेगुलेटर रो सिग्निफिकेंस कोन ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स सो द मेन फंक्शन और मेन सिग्निफिकेंस ऑस्मो रेगुलेशन शरीर रे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रो गोटे बैलेंस मेंटेन करिकि रखे एवं एहा द्वारा प्रॉपर सेल फंक्शनिंग हुए एवं इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन हेकी रुहे बुझी पारला देन वाटर एमोनोटेलिक और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म एमोनो माने एमोनिया रो एमोनोटेलिक सो जो एनिमल माने एमोनिया तुमरो नाइट्रोजनस वेस्ट हिसाब रे एक्सक्रीट आउट करंती ताको एमोनोटेलिक एनिमल कुहा जाए सो एमोनिया जोटा कि हाईली सॉल्युबल एवं टॉक्सिक सेतिपय ताको कोन बहुत परिमाण रे पानी आवश्यक हेथाय तेणु वाटरी एनिमल्स जो माने एक्वाटिक जो एनिमल्स थांती से मानकर एटा गोटे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एमती बोनीफिशेस और एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स एग्जांपल लिखि परिबो then what is a green gland and in which animal it is found green gland कोन green gland obviously it's an excretory organ so crustaceans मानकरे एगुडा को देखा जाय crustaceans क्लास रे कहिथिली जो तुमरो प्रॉन्स हे गला कंकड़ा चिंगुडी एगुडा को crustaceans कहंती आउटर गोटे खोलपा थिबो एमानकर एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ग्रीन ग्लैंड कुहा जाय हैला नाइट्रोजनस वेस्ट को एगुडा को एक्सक्रीट आउट करबा सहित गोटे आयनिक बैलेंस माने रेगुलेट करिकि रखंती देन देखिबा हमें 2.5 मार्क्स क्वेश्चन जोटा कि सेक्शन सी एथिरे देइछि तुमरो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी गोटे किडनी रो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन रो डायग्राम तुमे ड्रॉ करो ऑब्वियसली तुमे एटा ड्रॉ करिवो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ द किडनी जोटी तुमको माने किडनी रो आउटर लेयर देखिबार अछि देन तुमरो कॉर्टेक्स देखिबार अछि मेडुला देखिबार अछि हैला तापरे तमरो कैलिसेस रिनल आर्टरी रिनल वेन देन पेल्विस परे यूरेटर मु जदि तुमको पचार थांदी कि होल यूरिनरी सिस्टम देखा ताले तुमे ए डायग्राम टा करि थांतो जोठी यूरिनरी ब्लैडर सहित यूरेथ्रा एवं आर्टरी वेन एगुडा सबू तुम देखी था जेहेतु लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कही तुम एटा ड्रॉ कर सहित तुम जो छोट छोट पार्ट्स भी अच्छी सेगुडा तुम लेबलिंग करके लिखि पार ऑब्वियसली तुम मन रखिबो जेतेबेले डायग्राम्स करूछ सब बेले यूज पेंसिल अप्सरा पेंसिल्स अच्छी डार्क पेंसिल्स बा नट जो भी पेंसिल यूज करूछ टिके डार्क पेंसिल यूज करिवो इरेजर रे बारंबार लिभेबा टिके अवॉइड करो गोटे पट साइड रे गार देकी तुम लेबलिंग करि परिबो हैला एमती बही रे जेमती देछि चारियाडे सेमती न करिकी गोटे पट साइड रे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रे तुमे ताकू गार देकी तार लेबलिंग गुडा को करिवो बहुत सुंदर भाबे डायग्राम हबो जदी सीधा रे करि परछ ठीक अछि नले पोर्ट्रेट मोड लैंडस्केप मोड रे भी करि परिबो हैला then explain the mechanism of selective reabsorption in the proximal convoluted tubule that is PCT केवल पीसीटी रो कथा ही पचारची सेथिमे ओनली बोली लिखा हिची सो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो गुडा को ऑलरेडी अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड रे पीसीटी को चली आसीची सेइथिरु कोन कोन जिंस सिलेक्टिवली ताको सिलेक्ट करा है कि रीएब्जॉर्ब करा जीवो शरीर भीतर को हैला इन द पीसीटी एंश्योर्स दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कोन कोन सब रीएब्जॉर्ब हुए ग्लूकोज हुए एमिनो एसिड्स हुए बहुत प्रकार इलेक्ट्रोलाइट्स हुए एवं मोस्ट ऑफ द वाटर मध्ये रिकवर हेता है पीसीटी रे द पीसीटी सेल्स हैव ब्रश बॉर्डर इंक्रीज सरफेस एरिया ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम थाए जोथरे तुमर सिलिएटेड एपिथेलियम सेटा कोन करे सरफेस एरिया तार इंक्रीज करबा फल रे सेथिरे भलो से रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस रा हेई पारे active and passive transport allows for maximum absorption of useful substances back into the bloodstream तमरा interstitial space हो most of the condition ने interstitial space को ही reabsorption हेई थाए so active और passive both concentration gradient ऊपर निर्भर करिके so सेई द्वारा कोन हुए बॉडी रे न्यूट्रिएंट जो गुडा को फिल्टर आउट हेई आइतला से गुडा को बैक टू द बॉडी आउथरे आसे एवं सी तार बॉडी न्यूट्रिएंट गुडा को मेंटेन हेकि रहे शरीर रे जदि कंसंट्रेटेड भी
माने डाइल्यूटेड हो जाइथिबो ताहले कंसंट्रेट करिया पई यूरिन को वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए एवं वाटर भी गोटे बैलेंस स्टेट रे रही थाए हैला। सो पीसीटी रे तुमे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन रे एतिकी जिंस लिखि परिबो। डिफाइन ग्लोमेरुलर डिफाइन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर कौन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कौन आम इभेन एथिरे भी देखि परिबा बुक रे जोटा हमर देजी। So the amount of filtrate formed by kidney, the amount of filtrate formed by kidneys per minute is called glomerular filtration rate. So kidney माने कौन टोटल जति कि तुमरो नेफ्रॉन्स अछि सब नेफ्रॉन द्वारा गोटे मिनिट भितर जति कि फिल्ट्रेट फॉर्म होछि। फिल्ट्रेट माने कौन तार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सरला परे से जति कि फिल्ट्रेट तुमरो फॉर्म करूछि ताको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोली कहै छै जीएफआर। एवं गोटे हेल्दी इंडिविजुअल रो अप्रोक्सीमेटली 125 ml तैयारी होता है गोटे मिनिट रे। जदि से हिसाब रे हमें 24 आवर्स रो कैलकुलेट करबा पाखापाखि 180 लिटर। तो एई जिंस भी मु तुमको क्लास रे कहितली आम शरीर रे तो 180 लिटर ब्लड नहीं तेनु सेई सेम अमाउंट ऑफ ब्लड बारंबार बारंबार तुमरो गोटिए पट किडनी माने दीटा को किडनी देकी बारंबार से तुमरो अल्ट्रा फिल्ट्रेट हेउ थाई हैला। ता सहित तुमरो फिल्ट्रेशन जतिकी हैला तार 90% 90 ରୁ 95% पुणी अंतरे रीअब्जॉर्ब हुए शरीर भितर को लाइक वाटर हे गला इलेक्ट्रोलाइट्स हे गला ग्लूकोज हे गला सेही भली भाबरे पाखापाखि 1.5 ରୁ 3 लिटर 1.5 ରୁ 2 लिटर पर्यंत तुमरो यूरिन फॉर्मेशन हे कि यूरिन एक्सक्रीट आउट हे थाए। बुझा पड़ला। Describe briefly the encounter current mechanism operating in the kidney. जेहेतु एग्जाम पूर्व मु तुमको काउंटर करंट मेकानिज्म पढ़ी देथिली and I have also shared the notes with you in the telegram group. So these questions I put in the exam. The counter current mechanism operates between the limb. तम प्रथम जिंस लिखिबो काउंटर करंट मेकानिज्म कोठी हुए। काउंटर करंट मेकानिज्म तमरा हुए लूप ऑफ हेनले और हेनलेस लूप आउ वैसा रेक्टा भितरे। से भितर तमरो मेन पॉइंट कोटा मेन पॉइंट हैला तुमरो जो वैसा रेक्टा और हेनलेस लूप भितर तुमरो कोन यूरिया प्लस सोडियम क्लोराइड एई दुईटा जिंस जोटा कि तुमरो माने एब्जॉर्ब हुए सिक्रेट हुए पुनी रीअब्जॉर्ब हुए बस। NaCl एवं यूरिया एई दुईटा जिंस रो ही आदान प्रदान हेई थाए मुख्यतः तुमरो वैसा रेक्टा लूप ऑफ हेनले भितरे। तो एई जो पोर्शन अछि एई पोर्शन रे तमे जहां तमे देखिबा को पाउचो एटा को तमे पढी कि ताकू सेठी लिखि पारिबो हैला। सो एटी हमें कौन लिखुचे ना इट मेंटेन्स ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द मेडुला 300 टू 1200 जदि हमें देखिबा 300 टू 1200 300 टू 1200 पर्यंत ऑस्मोलैरिटी से मेंटेन ही कि रहूची। ता सहित दिस प्रोसेस अलाउज फॉर एफिशिएंट रीअब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट एंड लीडिंग टू कॉन्संट्रेट द यूरिन एंड वाटर कंजर्वेशन इन मैमल्स। आ गोटे जिनस एटी छाड़ी देछि जोटा तुमको एटी लेखिया को पड़िबो जे NaCl आउ यूरिया भितर ही जो हुए मुख्यतः मेनली से दीटा ही तुमरो अल्ट्राफिल्ट्रेशन सॉरी काउंटर करंट मेकानिज्म रे हुए। सो NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta हैला। NaCl तुमरो ascending माने जे जोटा ऊपर को उठे Henle's loop रो जोटा ऊपर को उठुची DCT पटे सेइथिरु NaCl बाहरी की तुमरो कोठी तमर एक्सचेंज होता है वैसा रेक्टार डिसेंडिंग लूप जोटा तल पटको आसे सेटा मेन हैला। तापरे यूरिया तमर पुनी आउथरे को पटे बाहरे यूरिया तमर बाहरे जो रहिला कलेक्टिंग ट्यूब रु बाहरी की पुनी आउथरे इंटरस्टिशियल स्पेस रे पसे इंटरस्टिशियल स्पेस रे पसी की पुनी आउथरे कोथरे एसेंडिंग लिम्फ ऑफ द जो रहिला लूप ऑफ हेनले से इथरे पुनी आउथरे प्रवेश करे रीअब्जॉर्ब हुए सॉरी सिक्रेट हुए। तो सेई दीटा जिंस तुमको लिखिया को पड़िबो हैला। बुझा पड़ला। सो ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन अप टू द कलेक्टिंग डक्ट। एइथरे तुम जदी पर्टिकुलरली तुम डायग्राम ड्रॉ करिया को चाहिबो ए डायग्राम विल बी एनफ। So diagrammatic representation of nephron showing blood vessels, duct and tubule. A diagram ta efferent arteriole
till collecting duct पर्यंत efferent arterial रू collecting duct पर्यंत PCT रू collecting duct पर्यंत तमे ए डायग्राम टाको ड्रॉ करि परिबो। describe the role of liver lungs and skin in excretion आमर जो लिवर बा जकृत रहिला लंग्स बा फुसफुस एवं स्किन आम चर्म एमानकर कौन रोल अच्छी एक्सक्रीशन रे। सो लिवर रो तो तमे समस्ते जानिचो जे ये बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट आउट करे जोटा कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन तमे डाइजेस्टिव सिस्टम तमरो सिलेबस रे नाही नहले तमे सेथिरे पढी थांतो जोटा कि कोलेस्ट्रॉल एसिमिलेशन रे सहाय्य करे। ड्रग्स जहाँ भी औषध पत्र खाउछ सेटा मध्ये तुमरो लिवर रे ही प्रोसेसिंग हुए विथ दिस एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स भाया द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यूरिया जोटा तुमरो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट हिसाब रे बाहरे एवं ता सहित एगुडाकर भी जो बाय प्रोडक्ट बाहरे से तुमरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देकी तुमरो जो फिकल मैटर सहित बाहरी जाए माने फूड रो वेस्टेज जहाँ भी तुमे माने फिकल मैटर डिफिकेशन करूच से बाटा देकी बाहरी जाए हैला। then the lungs remove carbon dioxide and water vapor through respiration। lungs द्वारा कौन हुए एक्सेस जो श्वसन कोशीय श्वसन प्रक्रिया सेल्युलर रेस्पिरेशन प्रोसेस से जो तुमरो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुए एवं जहाँ भी तुमरो वेस्ट गैसेस से गुडा को तुमरो लंग्स एक्सक्रीट आउट करे वाटर वेपर थ्रू रे निश्वास जरिया रे हैला रेस्पिरेशन प्रोसेस रे। द स्किन एक्सक्रीट सॉल्ट्स यूरिया एंड वाटर किछि अमाउंट रो माने यूरिया ता सहित सॉल्ट जो स्वेद ग्रंथि रही झाड़ बाहर एवं वाटर थ्रू स्वेट स्वेट माने कौन झाड़ कंट्रीब्यूटिंग टू वेस्ट एलिमिनेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। झाड़टा तुम बाहर कहीं सर जो गरम हुए से ऑटोमेटिकली तुम झाड़ सिक्रेट आउट हुए कहीं ना झाड़ बाहर पानीटा तुम ऑटोमेटिकली टेम्परेचर टाको इभापोरेट करेइबो बुझिपारल। सो ए तीनटा रोल है तुम लिवर लंग्स ऑफ स्किन रो इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। So this was all about the monthly test involving the excretory system। I hope तुमको सब गुड़ा को क्वेश्चन रो आंसर्स ठीक रूपे मु बतई पारिथिबी। तुमे आउथरे ए जिंस गुड़ा को देखिबो जदि कोनोसी जिंस एग्जाम रे मिस आउट हे जाईची तुमे से पुणी आउथरे जाई कि से जिंस को पढिबो पढी कि जदि कोनोसी भी डाउट हुए तुमे मते पचारि परबो टेलीग्राम ग्रुप रे हो यूट्यूब कमेंट सेक्शन रे हो तुमे पचारि पारिबो। Till then next exam jai bye see you later।